یہ تیرا کلام ہے اور میں پاک روح کے ذریعے سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو میری مدد کر، تیرے کلام کی گہری باتیں میرے اندر سما جائیں اور میں پاک روح کے ذریعے سے انہیں سمجھ سکوں، کیونکہ تیرا پاک روح ہمیں سمجھاتا ہے، تیرا پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے. آج ہم اس قوت کو سمجھ پائیں اور تیری پاک مرضی کو حاصل کر پائیں، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین آمین. واو. کہ تو ہم نے آج کے حوالے کو پڑھا ہے جو کہ یوحنا کی انجیل میں سے تھا، اور ونڈرفل خوبصورت آیتیں ہم نے سنی ہیں. ایک دن بھائی راجا، بھائی ہریندر، وہ میرے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاسٹر جی کسی دن پاک روح کے بارے میں آپ بتائیے، پاک روح کون ہے، ہم اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں. اوکے، تو آج ہم پاک روح کے بارے میں سیکھیں گے، اور اسپیشلی آج کے ٹاپک کا نام ہے ایکٹس آف دا ہولی اسپرٹ، پاک روح کے اعمال. ہم نے اردو میں یہ تو پڑھا ہے رسولوں کے اعمال، لیکن ہم نے اس کو نام دیا ہے پاک روح کے اعمال، پوتر آتما دے کرتو، پوتر آتما کے کرتو. آج ہم پاک روح کے کاموں کو سیکھیں گے. آج ہم پاک روح کے جو ورکس ہیں، اعمال ہیں، اس کے بارے میں سیکھیں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم پاک روح کے اعمال کے بارے میں سیکھیں، اس کے کاموں کے بارے میں سیکھیں، ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کس کو سیکھیں؟ پاک روح کو. کہ پاک روح ہے کون، کیا ہے پاک روح ہماری زندگی میں. تو اگر میں یہی سوال آپ سے کروں کہ آپ مجھے بتائیے آپ پاک روح کو کیا سمجھتے ہیں، پاک روح کیا ہے، کون ہے. اب یہ نہ کہیے وہ کبوتر کی تصویر جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے پاک روح کا. وہ پاک روح نہیں ہے. پاک روح کے اور بھی سمبل ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ یاد ہے پاک روح کا سمبل، یہ جو تیل ہے، یہ پاک روح کی علامت سمجھی جاتی ہے. جب کسی کو پاک روح کا کسی کو مسا کیا جاتا تھا کہ اس پہ اوپر خدا کا پاک روح ٹھہرے، تو کیا کرتے تھے؟ آئل کے ساتھ اسے مسا کرتے تھے. اور ہم بھی اپنی عبادت میں اس پریکٹس کو کرتے ہیں کہ آئل کے ساتھ مسا کرنا وہ پاک روح کی علامت ہے. ہلیلویا. پاک روح کی دوسری علامت کیا ہے؟ آگ. جب ہم آگ کے شعلوں میں دیکھتے ہیں، جب خدا کا پاک روح اترا رسولوں کے اوپر، تو کیا ہوا؟ آگ کے شعلے ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئے. ہلیلویا. تو آگ جو ہے وہ خدا کے پاک روح کو ظاہر کرتی ہے، نشان ہے. چوتھا نشان کیا ہے؟ پانی. پانی جو ہے وہ پاک روح کا ایک نشان ہے. خداوند نے کہا جب تم روح القدس پاؤ گے تو پانی کے چشمے تمہارے اندر سے بہہ نکلیں گے. اس لیے پانی سے بھی اگر کوئی مسا کرتا ہے تو اس کو غلط نہ کہیں. اپنی اپنی ٹیچنگ کو ہم نہ لے کے چلیں. کوئی تیل استعمال کرتا ہے، کوئی پانی استعمال کرتا ہے، فائن، یہ نشانات ہیں. لیکن اب ہم یہ نہیں کہیں گے پانی جو ہے وہ پوتر آتما ہے، یا آگ پوتر آتما ہے، یا کبوتر جس کی صورت میں خدا ہو کر یسوع مسیح پر اترا ٹھہر گیا، یا ہم کہیں نہیں کبوتر پوتر آتما ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ پاک روح کا نام سنتے ہیں تو پہلا خیال، پہلی سوچ، پہلا جواب جو آتا ہے ذہن میں وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں پاک روح ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے. جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو وہ فیلنگ ہمارے اندر آ جاتی ہے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاک روح ایک شکتی کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، جس کو پا کر ہم دنیا میں کرامات
दिखाना शुरू कर देते हैं और हम कहते फिरते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पाक रूह है। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं, आप भी अगर इन लोगों में से हैं जो पाक रूह को ये एक एहसास समझते हैं, एक फीलिंग समझते हैं या एक शक्ति समझते हैं जिसको आप पाकर दुनिया में चमत्कार करते फिरेंगे, तो आप लोग गलत हैं। क्योंकि पाक रूह एक एहसास, एक फीलिंग और शक्ति का नाम ही नहीं है। पाक रूह एक पर्सन है, एक शख्स है। कलाम उसके बारे में बताता है कि पाक रूह को रंजीदा या नाराज ना करो। तो हम एक शक्ति को नाराज कैसे करेंगे, या एक फीलिंग से हम उसको नाराज कैसे कर सकते हैं? इसलिए पाक रूह एक पर्सन है, एक शख्स है जिसको कलाम में, जिससे लोगों ने झूठ बोला। अब सफीरा और हननिया ने जब झूठ बोला तो उन्होंने कहा कि तुमने रूहुल कुद्दस से नहीं बल्कि तुमने किससे झूठ बोला है? खुदा से झूठ बोला है। वो शख्स है। और पाक रूह कलाम बताता है कि हमारे लिए आहें भर भर कर, रो रो कर हमारे लिए वो सिफारिश करता है। तो वो क्या है? वो एक शख्स है। और अब कुछ लोग इसको भी गलत साइड पे ले जाते हैं। वो समझते हैं कि पाक रूह वो है जिसके बारे में यीशु मसीह ने वादा किया था आसमान से जाने से पहले कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। तो वो समझते हैं कि शायद वो शख्स आएगा जो यीशु के बाद है, या कोई नबी होगा जो यीशु के बाद आएगा, और वो समझते हैं वो पाक रूह है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम उन हवाला जात को देखेंगे जहां पर यीशु मसीह ने यह वादा किया था। निकालेंगे यूहन्ना 14 बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत तक, और हम इसमें सीखेंगे कि पाक रूह क्या है, कौन है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। आमीन। अब ये आयतें बड़ी गहरी आयतें हैं, और यहां से हमने देखना है कि पाक रूह है कौन, और यहां पर झलकियां हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें तो पता चलेगा कि वो कोई शक्ति, कोई एहसास या कोई आम शख्स या नबी नहीं, बल्कि वो कौन है, रियल में वो कौन है। यीशु मसीह ने कहा, एक शर्त रखी है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो फिर क्या करोगे? मेरे हुक्मों पर चलोगे। अगर हम कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं और उसके हुक्मों को नहीं मानते, तो फिर समझो फिर भी आप उस कैटेगरी में नहीं आते कि आप पाक रूह को समझ सकें, आप पाक रूह को जान सकें, आप पाक रूह को पा सकें। यीशु मसीह से मोहब्बत रखने का मतलब है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, और उसके साथ वादा भी है। और वो वादा क्या है? और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। कहता है पहला मददगार तो मैं हूं बाप का, और दूसरा मददगार मेरे बाद आएगा, मेरे जाने के बाद आएगा। आगे क्या लिखा है? लिखा है जो अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब कोई शख्स या नबी अबद तक तो खुदा के साथ, हमारे साथ नहीं रह सकता। उसकी उम्र है 70, 80, 90, 100 साल भी लगा लो, लेकिन वो जो है पाक रूह जिसका खुदा वादा कर रहा है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और उसका नाम क्या है? रूहे हक, सच्चाई का आत्मा। कौन सा आत्मा? सच्चाई का आत्मा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस बंदे ने, किस नबी ने या किस ने यह दावा किया था कि मैं सच्चाई हूं, मैं सत्य हूं? यीशु मसीह ने यह वादा किया है। तो फिर ये आत्मा किसका हुआ? यीशु मसीह का हुआ।
क्योंकि ये आत्मा किसका है? द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, ये सच्चाई का आत्मा है। और ये दावा मेरे अजीजों यीशु के अलावा और किसी ने नहीं किया कि मैं सत्य हूं, मैं सच्चाई हूं। तो ये आत्मा जो आएगा हमारे पास वो यीशु का आत्मा है। हालेलुया। और यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे जानते हो, देखते हो, और मेरे आसमान पर जाने के बाद फिर क्या होगा? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे अंदर आऊंगा। किस सूरत में? पाक रूह की सूरत में। तो आज जो पाक रूह हमारे साथ है वो यीशु की सूरत है। हालेलुया। क्या हमने गाया था? रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान घबराएगा, डर जाएगा, वो कांबेगा। और आज ऐसे ही है, जब पाक रूह से भरे हुए हम जाते हैं बीमारों पर, बदरू गिरफ्ता के ऊपर जब दुआ करते हैं तो शैतान क्या करता है? कांपता है, डरता है। यही वजह है क्योंकि यीशु अब रूह की सूरत में हमारे साथ है। पहले वो बाप बनकर उसने दुनिया में काम किया। इब्रानियों के खत में जब पहला चैप्टर उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, आप निकाले मेरे साथ, और आपको पता चलेगा कि खुदा किस किस तरह से काम करता रहा है। इब्रानियों के खत में लिखा है कि खुदा पहले नबियों के जरिए से काम करता था। निकाला किसी ने? पढ़ें। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ। आमीन। तो क्या है, पहले कौन बात करता था लोगों के साथ? कौन खुदा बात करता था। किन के जरिए? खुदा बात करता था, लेकिन किन के जरिए? नबियों के जरिए बात करता था। अब्राहम के जरिए, इसहाक, यकूब के जरिए, और जितने नबी हमें दानियल और यसाया मिलते हैं उनके जरिए खुदा हमसे बात करता था। लेकिन आखिरी जमाने में उसने किसके जरिए बात की हमसे? पुत्र, बेटे के जरिए उसने बात की। लेकिन अब जो है, बेटे के जाने के बाद जब यीशु ने कहा कि मैं अपना आत्मा, मैं तुम्हारे अंदर वापस आऊंगा, तो अब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु हमसे बात करता है। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा जिसको आज पाने की जरूरत है। आप ये देखें कि पवित्र आत्मा को क्या नाम दिया जाता है? सच्चाई का आत्मा। और सच्चाई के लिए पता है इब्रानी जुबान में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? एमत। एमत में 3 लेटर इस्तेमाल होते हैं, बस 3 लेटर, अलिफ, मीम और ताफ ते। ये 3 लेटर होते हैं। इब्रानी जुबान जो पुरानी इब्रानी है वो शक्लें बनाकर वो लिखते थे। और पता है अलिफ के लिए वो क्या शक्ल बनाते थे? एक बुल यानी बैल, उसकी शक्ल बनाते थे, उसका हेड बनाते थे। और उसका मतलब बैल उन दिनों में अभी भी बड़ा ताकतवर जानवर, जो पालतू जानवर हैं उनमें बड़ा ताकतवर जानवर समझा जाता है। उसका सर बनाने की वजह क्या थी? कि ये ताकत वाला है, ये हेड है, ठीक है। और इब्रानी लोग जो थे उसको लीडर के मानों में इस्तेमाल करते थे, उसको समझते थे ये हेड है, ये खुदा के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। और दूसरा लेटर है मीम। मीम जो है ये इस्तेमाल होता था, इसकी शक्ल पानी की शक्ल में बनाई जाती थी। और पानी जो है वो पाक रूह को जाहिर करता है। और ते जो है ताफ, पता है उसकी शक्ल क्या बनाई जाती थी उन दिनों में? क्रॉस की शक्ल बनाई जाती थी। अलिफ किसकी शक्ल है? खुदा के लिए वो इस्तेमाल होता था, जिसमें वो हेड, सर बनाया जाता था एक ताकतवर चीज का। और दूसरे में मीम
यानी पानी की शक्ल थी और पानी पवित्र आत्मा को जाहिर करता है। और तीसरे नंबर पर ताफ, क्रॉस से हमें क्या जाहिर होता है पास्टर जी? यीशु मसीह जाहिर होता है। तो इससे लफ्ज बनता है एमत, सच्चाई। तो लफ्जों में ही खुदा ने सच्चाई को रखा है, हमें बस अपनी आंखें खोल कर उसको जानने की जरूरत है। एमत को, सच्चाई को समझने की जरूरत है। और यहां से पता चलता है खुदा बाप, बेटा और पाक रूह, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। लेकिन अफसोस की बात है कि यह सच्चाई आम लोगों की समझ में नहीं आएगी। यह सच्चाई किसकी समझ में आएगी? जो यीशु से मोहब्बत करता है और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, उसके हुक्मों पर चलता है, यह सच्चाई उसको समझ आएगी। तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल रोमियों के खत में 8वें बाब की 9वीं आयत में लिखता है, कहता है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि तुम रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। किसका रूह? खुदा का रूह। और आगे देखें, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। हालेलुया। इससे बड़ी और आयत समझने के लिए हो ही नहीं सकती। साफ लिखा है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और आगे क्या लिखा है? जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। तो खुदा का रूह और मसीह का रूह एक ही बात है। तो जो रूह आज हमारे साथ है, जो रूह हमारे अंदर काम करता है, ये मसीह का रूह है और ये खुदा का रूह है। एक ही बात है। हमारा ईमान क्या है मसीहियों का? एक खुदा में 3 शख्स हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम पास्टर अनिल कांत का गीत सुने तो वो क्या कहता है? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, उस मुझ में वो जिंदा है। यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। ब्यूटीफुल। मैं चाहता हूं आप मत्ती की अंजील और उसका 28 बाब उसकी 19 आयत को भी ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। हालेलुया। हो गई बात क्लियर? क्या यीशु कहता है? कहता है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये नहीं है यीशु के नाम का बपतिस्मा। किसका? खुदा बाप, बेटे और पाक रूह का। इसके इख्तियार में हमने बपतिस्मा देना है। ये खुदावंद यीशु मसीह के डायरेक्ट अल्फाज हैं और इसको ग्रेट कमीशन भी कहते हैं। सबसे बड़ा हुक्म भी इसी को कहते हैं। तो क्योंकि तीनों एक ही हैं। और लिखा है और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पाक रूह की सूरत में यीशु हमेशा तक हमारे साथ है। वाह। और लिखा है, हमने फिर क्या सीखा आज के दिन में? हमने ये सीखा कि खुदा रूह है। खुदा क्या है? ये जो रूहुल कुद्दस के बारे में हम सीख रहे हैं, ये खुदा है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। ये है हमारे लिए आज का पैगाम। और उम्मीद करता हूं कि आप पाक रूह को समझ चुके हैं। पुराने नेम में भी खुदा काम करता था और आज भी वो हमारे साथ काम करता है और आखिर तक वो काम करता रहेगा। पता है पाक रूह के काम में सबसे बड़ा काम ये है दुल्हन की तैयारी
और वो दुल्हन कौन सी है? कलीसिया है। इसकी एक झलक हमें पुराने नेम में भी दिखाई गई है। अब्राहम ने, बाप जो था, उसने जब अपने बेटे की दुल्हन लेने के लिए भेजा तो किसको भेजा था? एलीअजर को भेजा था। और एलीअजर कौन था? उसका खादम था, उसका मददगार था। तो पाकरू को क्या नाम दिया जाता है? मददगार। तो उसकी इजहाक की दुल्हन को किसने तैयार किया और कौन लेके आया? बोलिए। एलीअजर मददगार लेके आया। और आज यीशु की दुल्हन को किसने तैयार करना है और लेके आना है? पाकरू ने। तो पाकरू का सबसे बड़ा काम हमें तैयार करना है। और पाकरू की हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत है मेरे अजीजों। पाकरू को रिसीव करिए, पाकरू के लिए पुकारिए। दाऊद पुराने नेम में भी समझ चुका था और क्या कहता है? कहता है मेरी रूह खुदा की प्यासी है। खुदा मैं तेरी रूह से कहां भाग कर कहां छुपूं? वो जब पाप भी कर लेता है तो कहता है खुदा अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना करना। वो समझ चुका था कि पाक रूह की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है। एक दफा पोप जॉन पॉल से एक सवाल किया गया और पूछा गया कि पोप साहब बताइए कि इस दुनिया का, इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? तो पता क्या जवाब आगे से दिया? उसने कहा द मिनिस्ट्री एंड टीचिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पाक रूह की तालीम और पाक रूह की जो खिदमतें हैं, पाक रूह के जो काम हैं, वो इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। हालेलुया। और अगर हम पाक रूह को जानते नहीं हैं तो फिर समझिए कि हम पाक रूह को पा भी नहीं सकते। मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं, हमारी कलीसिया में या बड़े करीबियों में भी मैंने देखा है, कई कहते हैं खुदावन तू अपनी रूह को मेरे अंदर भेज, मैं तेरी रूह को हासिल करना चाहता हूं। वो खुदा की रूह नहीं है, वो खुदा का रूह है। वो खुदा का रूह है। पवित्र आत्मा को हम कहेंगे खुदावन तू मुझे अपने पाक रूह से भर, अपनी पाक रूह से ना भर। या ये ना कहिए कि वो शख्स खुदा की पाक रूह से भरा हुआ है, खुदा के पाक रूह से भरा हुआ है। इस तरह से आप दुआ करें। आप कभी अपने बाप को ये तो नहीं कहते अब्बू आप कहां जा रही हो? आप कहेंगे पापा डैडी आप कहां जा रहे हो, किथे जा रहे हो? ठीक है। तो इसलिए अगर आप बाप को समझना चाहते हैं तो फिर उसको पुकारना भी हमें सीखना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, पाकरू जो है, पाकरू के बगैर हम खुदा को जान नहीं सकते हैं। याद रखें, क्या कहते हैं? रब एक गुंजलधार बुझारत ते दस कौन इनू सुलझावे, रूह दी मामूरी बिन बंदिया एक तंद भी सुलझ ना पावे। पाकरू के बगैर आप खुदा को नहीं जान सकते, पाकरू के बगैर आप कलाम को नहीं समझ सकते, पाकरू के बगैर आप चल नहीं सकते। इसलिए पाकरू का हमारी जिंदगियों में होना बहुत जरूरी है। और पाकरू के बगैर हम खुदा की बादशाही में भी नहीं जा सकते। वाह, कितनी बड़ी बात है। पाकरू के बगैर हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। क्यों? कैसे मैं ये बात कह सकता हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने निकोदेमस से क्या कहा था कि तुझे आसमान पर जाने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और नए सिरे से पैदा कैसे होना है? पानी और रूह से बपतिस्मा लेकर। हालेलुया। तो यहां किस चीज का जिक्र है? पानी का। पानी हमने सीखा कि पाकरू को जाहिर करता है, तो हमने पानी और रूह से पैदा होना है। और पानी और रूह से हम कैसे पैदा होते हैं? बपतिस्मा लेकर। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसलिए पाकरू से भरना, पाकरू को रिसीव करना और पाकरू
को अपने आगे आगे रखना, उसकी अगुवाई में चलना, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल हो जाएगा। पाकरू से भरना है हमें। और पाकरू से कैसे भरना है? अपने आप को खाली करके। अगर मैं इस पानी के अंदर कुछ काले धब्बे या लाल धब्बे निशान डाल दूं, कोई गंद डाल दूं, तो क्या होएगा? पानी गंदा हो जाएगा। इसको साफ कैसे करेंगे आप? दो तरीके हैं, या तो इसको खाली कर दो, या इसमें साफ पानी डालना शुरू कर दो, लिविंग वाटर इसके अंदर भरना शुरू कर दो। वो भरता जाएगा और जो गंद है वो बाहर आता जाएगा। ऐसे ही आपने पाकरू को भरना, पाकरू से भरना है। और कलाम बड़ी मदद करता है, क्योंकि कलाम भी रीमा वर्ड जिसको हम यूज करते हैं, पाकलाम की सूरत में ही है। तो मेरे अजीजों, पाकरू को हासिल करें, क्योंकि पाकरू हमारे लिए जरूरी है। और कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा पाकरू से भरा हुआ है, उसके अंदर पाकरू काम करता है? अब ये भी ना कि ये गैर जुबान से। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि तुम कैसे पहचानोगे? उनके फलों से पहचानोगे। और बताइए हैं जरा, पाकरू के फल कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, आनंद, ये है। पवित्रताई है, पाकीज़गी है। इस तरह से आप पता चलेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि आपके अंदर रूह के फल हैं और आप रूह से भरे हुए हैं। याद रखें, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो खुदा का पाकरू आपके अंदर काम करता है। ये उसका वादा है कि जब तुम बपतिस्मा लोगे तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। हालेलुया, वाह। तो रूह के फलों से भी हमें भरना है। और अब हम आते हैं कि पाकरू के काम क्या हैं। मेरे अजीजों, पाकरू का पहला काम आपको पाक करना है, क्योंकि वो पाक है, तैयार करना है। वो एलियाजर का काम क्या था? दुल्हन को तैयार करना। और तैयारी में पवित्रताई भी आती है, तहारत आती है, पाकीज़गी आती है। तो पाकरू का काम है यीशु की दुल्हन को तैयार करना, पाक करना, परफ्यूम लगाना कलाम का। हालेलुया, वाह। तो पाकरू को अपने अंदर आने दें ताकि वो आपकी जिंदगी में पवित्रताई को पैदा करें। पाकरू का दूसरा काम, पाकरू जिंदगी बख्शता है। अगर हमारे जिस्म मुर्दा हो चुके हैं तो कौन जिंदगी भरेगा? पाकरू। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यह काम इज़िकियल को किसने कहा? खुदा का रूह करेगा, खुदा का रूह करेगा। ना जोर से, ना ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से यह पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तो इसलिए याद रखें, खुदा के पाक रूह का काम आपको जिंदगी देना है। अगर आप किसी आपके बदन का कोई हिस्सा कमजोर है, आपकी कलीसिया का कोई मेंबर कमजोर है, तो आप उसके लिए दुआ करें, पाकरू की ताकत को मांगे जो आपको जिंदगी देता है। आपको पता है इस बदन को जिंदगी कौन देता है? रूह देता है। जब रूह निकल जाती है तो बदन मुर्दा हो जाता है, और रूह वापस आए तो रूह जिंदगी देता है। तो खुदा का जो पाक रूह है, खुदा जो रूह है, कलाम में लिखा है कि उस रूह ने जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हारे मुर्दा कामों से तुम्हें जिंदा क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, वाह। पाक रूह का एक और काम है कि वो हमारी जिंदगी में सच्चाई को लाता है। वो हमें सच्चाई से इंट्रोड्यूस करवाता है। और वो सच्चाई कौन सी है? यीशु मसीह है। तो पाक रूह सारी बातें वो लेकर, यीशु मसीह की बातें लेकर वो हम तक पहुंचाता है, और हमें यीशु की अहमियत समझ में आती है कि यीशु कौन है। तो इसलिए मेरे अजीजों, पाक रूह हमारी जिंदगी में सच्चाई को लाता है, पाक रूह हमारी जिंदगी में आजादी को लाता है।
आजादी, अगर आज हम आजाद नहीं, अगर आज हम घुटे हुए हैं, कैद के अंदर हैं, मुसीबत में हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारी की कैद के अंदर हैं, तो याद रखें कि आपको वहां से छुड़ाने के लिए खुदा ने अपना रूह मददगार भेजा है जो आपको आजाद करेगा। दूसरा करंथियों 3:17 में लिखा है, और खुदा रूह है और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। वाह! पाक रूह हमारी रहनुमाई भी करता है, और रहनुमा क्या करता है? अपनी भेड़ों के इर्द गिर्द अपनी बाड़ लगा लेता है। और अयूब पहले से ही इस बात को समझ चुका था कि मैं खुदा के पाक रूह की बाड़ के अंदर हूं, और शैतान भी जानता था। शैतान खुदा को कहता है कि खुदावंद मैं उस पर अपना हाथ कैसे चलाऊं, क्योंकि तेरी बाड़ उसके गिर्द लगी हुई है। तो जब हम खुदा के रूह की अगुवाई में चलते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारे इर्द गिर्द अपनी बाड़ लगा लेता है, फिर शैतान हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। पाक रूह पुराने नेम में आग का सतून बनकर, आग का थंब बनकर आगे आगे चलता था, और दिन को वो बादल का थंब सतून बनकर इस्राएलियों की रहनुमाई करता था। लेकिन आज आप जो रूहानी इस्राएली हैं, खुदा का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है, और हमें खुदा की बादशाही में ले जाने के लिए वो तैयार है। वो सच्चाई का आत्मा है, और यूहन्ना 14:13 में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। जो प्रोफेसीज हम सुनते हैं, जो खुदा के आने वाले वक्तों के बारे में हम जानते हैं कि आगे क्या होगा, ये खुदा का पाक रूह है जो हमें बताता है और गाइड करता है। पाक रूह हमें जोर और ताकत बख्शता है। हालेलुया! जोर और ताकत। कैसा जोर और ताकत? उसके गीत गाने का जोर और ताकत, उसका कलाम प्रचार करने का जोर और ताकत, दूसरे लोगों में जाकर बोलने के लिए, खुदावंद की गवाही देने के लिए वो हमें जोर और ताकत बख्शता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में अमाल की किताब रसूलों के कर्तव्य 1 बाब की 8वीं आयत में लिखा, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, जोर पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया! और पाक रूह मसीह में हमें एक करता है, वो डिवाइड नहीं करता। डिवाइड काम किसका है? अबलीस का। लेकिन मिलाना, इकट्ठा करना रूह का काम है। अभी पास्टर जी ने पढ़ा कि रूह जो है वो हम खुदावंद के रूह में एक बदन हैं, और हम जब इकट्ठे हैं तो हम काम करते हैं। लेकिन अगर हमारे अलग-अलग टोटे हो जाएं तो फिर कोई काम करेंगे हम? नहीं, फिर हम पड़े रहेंगे, फिर हम मुर्दा हैं, फिर हम जिंदा नहीं हैं। इसलिए खुदा का पाक रूह हमें इकट्ठा करता है, हमें यूनाइट करता है। खुदा का पाक रूह हमें पाक करता है ताकि वो हमारे अंदर, खुदा हमारे अंदर आ सके, वो हमें जीवन दे सके और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाएं। यीशु के ज़िंदा और जलाली कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सब लोगों की बरकत हो। आमीन।